Hello friends, good morning. I'm Dilip here. क्लास 8 के मैंने एक चैप्टर साइंस का डील करने जा रहा हूँ. फ्रेंड्स, आई नीड योर अटेंडेंस. And attendance, it means attention. So guys, be careful. Attention if I'm telling. So please focus on the study and my words, what I'm telling you. You all are the students and you must have to be attention while seeing any video. Classes are online, so students, you are not supposed to be worried कि क्या पूछना है, कैसे होगी पढ़ाई. Don't think this all. We are here to take your worry. So I request, if you have any doubt, please reach me at my given mobile number and try to understand each and every points. While seeing the video, focus and don't play कि हाँ online classes हो रहा है, nothing will happen. I know I can't do anything. No one can do. कोई कुछ नहीं कर सकता. But while study, just focus on your study and don't cheat yourself. खुद को cheat नहीं करना है. आपको पढ़ना है. If you're getting something, then learn. If you're not getting, then leave it. अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे समझ में है, आता है और मेरे लायक है, तो ठीक है, आप पढ़ो इस चीज को. बट इफ you're not getting कि हाँ चलो मेरे समझ से बाहर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then that time you have to just be patient and don't hesitate by yourself कि हाँ सर से पूछेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे. डोंट बी हेजिटेट. टेक्स्ट मी एनी टाइम, व्हाट्सएप मी एनी टाइम. यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस. ओके, आई एम गिवन यू प्रेफरेंस. आई वॉन्ट डू एनीथिंग. क्या हाँ आपने कॉल क्यों किया, व्हाट्सएप क्यों किया? आई वॉन्ट डू एनीथिंग. सो नाउ कम टू द चैप्टर दैट इज फोर्स एंड प्रेशर. So students, क्लास 8 में आपको फोर्स एंड प्रेशर पढ़ना है. बट इफ यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज प्रेशर इन दिस चैप्टर, so you are not going to worry in स्टैंडर्ड 10th. अगर आप 8 में यहाँ पढ़ लेते हो इन चैप्टर को, तो आपको 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. थोड़ा सा वास्ट होगा, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना, वो क्लियर होगी. ठीक है. सो आपने 7th में भी कुछ फोर्स पढ़ा होगा. लाइक, डू यू रिकॉल? कुछ याद है आपको? 5 सेकंड का टाइम आपके पास. थोड़ा सा अपने माइंड पे प्रेशर डालो कि हाँ लास्ट ईयर हम लोगों ने, लास्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा क्या था. Okay friends, so just force your mind and you'll break something, you'll get something definitely. जब आप कभी भी किसी भी चीज पे फोर्स करोगे, फोर्स डालोगे, the new invention will occur, the new things will arrive. So that is force. वही क्या है? Force. If you are doing something and the result, the outcome will be differ, then that is force. It can be anything. It can be pressure also. It can be emotion also. It can be intelligence also. So if you're putting your force into your mind, so you can go to the past. You can think for the future. How? So this is the force. So friends, what is the distance? If I'm telling
Do you recall how we can decide in this chapter, study this chapter? Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? How we can understand if the object is moving faster? So जब भी हम किसी चीज को डिसाइड करते हैं, किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि ये इनकी मूवमेंट फास्ट हो रही है, so we are taking some position, we are taking some base कि हाँ, from this base this is moving faster. If you compare कि one bike is moving 80 km per hour and the other bike which is moving behind that bike 60 km per hour, so we can easily say कि हाँ ये 60 किलोमीटर होगा, तो it can be moving slowly and 80 kilometer, but by the speed you can tell, but the base will be the common for each and everyone. Understand guys? बेस सेम रहेगा. एक बेस से अगर मैं आपको बताऊं कि आपके बारे में कुछ एग्जांपल ही दूं, आई एम गोइंग टू गिव वर्क फॉर द 2 स्टूडेंट्स. 2 स्टूडेंट को मैं काम देने जा रहा हूं, दोनों को रन करना है, ठीक है. सो आई एम गिविंग द बेस कि हाँ इस पोजीशन से आपको दौड़ना है और वहां तक टच करना है. 100 मीटर का रेस होता है, वहां तक आपको टच करना है. सो बाय द फोर्स ही और सी स्टार्टेड रनिंग. इस फोर्स से वो रन करना स्टार्ट किया, दौड़ना स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया. और एक पॉइंट ऐसा आएगा, कोई पहले आएगा, कोई बाद में आएगा. हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. सो हाउ वी मैनेज, बिकॉज आई हैव टेकन द बेस, मैंने बेस ले लिया और मैंने देखा कौन जल्दी आया. सो एट दैट टाइम आई कैन नॉट टेल कि ये इसने फोर्स ज्यादा लगा, बट इन द अदर पार्ट वी कैन से हाँ ये जल्दी आ गया. सो जल्दी आया तो वी आर सेइंग कि हाँ ये फोर्स लगा, दैट इज व्हाई ही केम फास्ट, इसलिए वो जल्दी आया. सो फोर्स इज जस्ट, इन सिंपल वर्ड इफ यू टेल, in simple word if I'll tell, force is energy. Push or pull is called force. जितना push मैंने किया और जितना pull भी किया, that is also a force. So अब इसको पढ़ते हैं हम लोग friends. You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down. Sometimes it may changes its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also changes its direction. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or changes its direction of motion? कभी इमेजिन आपने नहीं किया होगा कि इनकी डायरेक्शन को कौन चेंज करता है, इनकी मोशन में कौन चेंजेस लाते हैं, ये क्यों रुक जाता है एक पोजीशन पे और क्यों नहीं चलते रहता है. इसलिए कि हाँ बॉल अगर जा रहा है तो इट नेवर मूविंग, वो हमेशा मूव नहीं करता रहता है. एक पोजीशन आता है जब वो रुक जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. वो क्या है? फ्रिक्शन है. बॉल और अर्थ के ग्रेविटी के कॉजेस में बॉल क्या होता है? रुकता है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर वही बॉल आपका फ्रिक्शन लेस हो जाएगा तो वो बॉल आपका रुकेगा नहीं. बट इट कैन नॉट बी इन दिस अर्थ, कि अर्थ में पॉसिबल नहीं है. इट कैन बी पॉसिबल इन मून, बिकॉज वहां पे ग्रेविटी नहीं होता है. ग्रेविटी इज ऑल्सो अ फोर्स विच अट्रैक्ट्स एट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट को, एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है. ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज
बिकॉज ऑफ आवर ग्रेविटेशनल फोर्स। और जिसके कारण से क्या होता है, आपके बॉल कभी स्लो हो जाते हैं और इट कैन नॉट गो फास्टर। समटाइम्स इट्स डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस। डायरेक्शन चेंज होता है, इट इज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल प्रेजेंट देयर और द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल प्रेजेंट देयर। जितना ज्यादा नंबर है ऑब्स्टेकल के, अगर उस ग्राउंड में अगर ऑब्स्टेकल ज्यादा है तो मूवमेंट भी उतना ज्यादा होगा। अगर ऑब्स्टेकल नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा उस बॉल का। ऑब्स्टेकल मतलब होता क्या है, एनी पार्टिकल्स विच causes motion of a direction of changes of motion of a ball। किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉल के अगर डायरेक्शन को कोई चीज चेंज करता है, दैट इज ऑब्स्टेकल। वो क्या होता है, ऑब्स्टेकल होते हैं। सो रिकॉल दिस ऑल थिंग्स फ्रेंड्स, रिकॉल डेली यूजेस। आपके एक्सपीरियंस में जो सारी चीजें होते हैं, everything, try to use that thing, try to get these all things। हर एक चीज, अगर आप खेलते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, दौड़ते हो, भागते हो, recall these all things। So friends, I am giving homework to all of you। Try to first of all read this all। जितना भी वीडियो में एक एक लाइन है, आपको ये सारी चीज को पढ़ना है। And slow down, try to read this all। फर्स्ट पेज आपके कंप्लीट हो गए। But before completing these things, I would request all of you, try to gain something. Try to read something. Don't waste your time. Time is very precious for each and every। So friends, I always request, if any doubt, let me know। At least मुझे पता तो होना चाहिए आपको डिफिकल्टीज क्या क्या आ रही है, प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है। Once the problem occurs, definitely there would be a solution। अगर प्रॉब्लम ही नहीं आएगा तो सॉल्यूशन कैसे होगा। So try to get all your solution। में भी हो सकता है आपको टाइम लगेगा, लेट लगेगा, but I'll give the solution anyway। I'll solve it your solutions। Okay friends, so keep in mind, never be hesitate with me। मेरे से कभी hesitate नहीं होना है। I'm friendly with you, you know। मुझे आप जानते हो, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। Be frank and ask anything, whatever, according to your uses, according to your study। Ask everything। I'll happy to help you। Okay friends, take care। Thank you। Hello students, good morning। So last class I have discussed still foods। So last class I already have told you what is the definition of force। So students, so now we are going to see this 11.1 force a push or pull। Somewhere we have to push to act a force, to show a force। Somewhere we have to pull to action whether it is working or not। So it is called push or pull is also said to be a force। This is also a type of definition। So what are the action in this we are doing for pushing as well as for pulling? So action like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks। So ऐसे हम लोग को धक्का देना, खींचना, खोलना और क्लोज करना, किक करना, हिट करना, लिफ्ट करना, ये सारी चीज जो है, ये सारे एक्शन है फोर्स को डेवलप करने के लिए। किसी भी बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम मोशन में लाना चाहते हैं तो वो उसमें हमको फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगा। विदाउट फोर्स द मोशन द ऑब्जेक्ट इज एट सेम प्लेस वेयर इट इज प्लेस्ड। वो वहीं रखा रहेगा जहां वो रखा हुआ था। सो यू कैन इमेजिन दिस थिंग, ये चीज आप भी इमेजिन कर सकते हो। सो ईच of these action usually results in same kind of change in the motion of an object।
So can these terms be replaced with one or more terms? Let us find out these things. मतलब ये सारे चीज को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिंपल दो चीज से, वो है पुश और पुल. अंडरस्टूड गाइज? सो लेट अस सी द नेक्स्ट. अब देखो, यू सी हियर द ड्राइंग इज गिवन टू मेक यू अंडरस्टैंड वेदर. ए नंबर में आपको गिवन है अ गोल कीपर सेविंग अ गोल, अ हॉकी प्लेयर किकिंग अ बॉल, फ्लिकिंग अ बॉल, अ फील्डर is stopping a ball. So here there is three examples which is given to show the force which is acting. We have to act in opposite direction to make understand to stop anything. So फुटबॉल को, अगर गोलकीपर को फुटबॉल रोकना है तो he has to keep a football. अगर हॉकी प्लेयर को बॉल को मारना है, सो ही हैज टू मेक अ फोर्स लाइक फ्लिकिंग सो दैट द बॉल कैन गो बियॉन्ड. नेक्स्ट, अ फील्डर इज स्टॉपिंग अ बॉल. यहां फील्डर क्या है? बॉल को स्टॉप कर रहा है ताकि उसके रन ना जाए, बॉल आउटसाइड बाउंड ना हो जाए. दैट इज व्हाई इट इज स्टॉपिंग. So these three all are acting force in different directions. Some of them is acting to stop, some of them is acting to flick. So this type of force, that is push or pull. So now you have to read this activity 11.1. Give some example of familiar situations involving motion of object. You can add more situations or replace those given here. Try to identify action involved in each case as a push and or a pull and record your observations. One example has been given to help you. So one example is already given here. So ये आपको, this is your homework, nothing else. ये ज्यादा मैं आज कुछ नहीं आपको दे रहा हूँ, ये आपके होमवर्क है. सो इसमें आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन आपको इसको नोटबुक में कंप्लीट करके रखना है. आइडेंटिफाइंग एक्शन एज पुश और पुल, आपको अपने घर के हिसाब से, लाइक कोई भी ओपनिंग और शटिंग अ डोर, इसमें हम लोग क्या करते हैं? सो हियर इट इज गिवन एक्शन व्हाट कैन बी पॉसिबल. द पॉसिबल एक्शन इज हियर पुशिंग, पुलिंग, पिकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, लोअरिंग, फ्लाइंग, किकिंग, थ्रोइंग, shutting, flicking. So these all are the actions. So now the later on, if you have imagine this thing push or pull, so ये चीज आपको खुद से इमेजिन करना पड़ेगा कि इसमें एक्शन हुआ क्या है. अगर हमने पुश किया है, गेट को क्लोज किया है, तो पुश करेंगे डेफिनेटली. अगर हमने गेट को ओपन किया, सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, अगर ओपन किया है तो डेफिनेटली पुल किया है. इसी तरह, so there is a lot of things. Drawing a bucket of water from a well, a football player talking a penalty kick, so a cricket ball hit by a batsman, moving a loaded card, opening a drawer. So in this all you can imagine, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपने फोर्स में दो टाइप जो पढ़ा आपने, पुश और पुल, कहाँ हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टेबल व्हिच आई हैव गिवन यू द होमवर्क. So try to complete by your own, and if you have any doubts you may ask to your parents, your elders, or if you are not getting clear from there, then make ask to me. So do you notice that each of the action can be grouped as a pull or push. So can you infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? इससे हम लोग को समझ में आ गया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर अपने को मोशन में लाना है तो मुझे पुश और पुल करना पड़ेगा. So that is the definition I have told you earlier. In science, a push or pull on an object is called a force. Thus, we can say that the motion imparted to object was due to the action of a force. इसीलिए जो मोशन में कोई भी चीज आता है उसमें बिना फोर्स के वो मोशन में नहीं आता है. दिस इज द बेसिक थ्योरी यू हैव टू अंडरस्टैंड. आपको ये चीज बेसिक थ्योरी आपको समझना पड़ेगा कि अगर फोर्स हम लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट
अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो वो रेस्ट में कर सकते हैं उसको, बाय एक्टिंग ऑन फोर्स, बाय एक्टिंग पुल और पुशिंग एक्शन। व्हेन डज द फोर्स कम टू इनटू प्ले, लेट अस फाइंड आउट कब हमारा फोर्स एक्शन में आता है, मोशन में आता है। सो दिस आई विल टेल यू लेटर। Before that, I have given you homework and you have to read this all out. So later on, we will see 11.2, what is the interaction of force. We will see the interaction of force. So I learned in class 6 that a magnet attract a piece of iron towards it. It's an attraction, also a pull. What about repulsion between similar poles of two magnet? Is it a pull or push? So इसके बारे में, attraction के बारे में और polar view का interaction के बारे में, magnet का attraction, repulsion, this is also called, this is also a force. So we'll see this type of phenomena later. Before that, try to complete the homework because I need to check this all. Thank you.